Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are doing good at your homes. Take out your Oxford Progressive English books. Page number 14. हमने आपका जो टेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स इन ज़ाम्बिया फेयर फ्लाइट फ्रॉम पोचर्स इज डैमेजिंग क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी टेक्स्ट स्टार्ट कर लिया था. हमने इतना पढ़ लिया था कि जो एलिफेंट्स है वो जिम्बाब्वे से लेके ज़ाम्बिया तक जा रहे हैं. कौन से रिवर के थ्रू? ज़ैम्बेज़ी रिवर के थ्रू. क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उनके ऊपर वायलेंस हो रही है, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं जिम्बाब्वे से ज़ाम्बिया की तरफ. तो अब हम पढ़ेंगे आगे. फर्स्ट हम इसको एक रीड देंगे, आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोर्ड से नोट डाउन करेंगे. पैराग्राफ नंबर 5th. At Mosi-oa-Tunya National Park on the Zambian side of the Zambezi River, elephants are arriving daily from across the river. Wildlife experts says the movement is much larger than a normal seasonal immigration. Immigration का मतलब क्या है? Act of leaving one's own country to settle permanently in another. इसका मतलब है हिजरत करना. And is causing a serious problem for Zambian authorities. There are so many elephants trapped in small area that serious damage is being caused to the environment. About 200 elephants are thought to be living in a small national park close to the city of Livingstone, an area more used to a population of about 50. The elephants are stripping the area of foliage and knocking down trees, and there are conflicts between the wild elephants and farmers. Conflict से मुराद क्या होता है? तनाज़ात, a serious disagreements और arguments. आप बोर्ड से साथ साथ मीनिंग्स नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको टेक्स्ट क्लियर होता जाए. एलिफेंट्स किल 2 लोकल विलेजर्स इन द पार्क दिस ईयर. लॉलेसनेस. Noble Zambian representative of the UK-based David Shepherd Wildlife Foundation said lawlessness in Zimbabwe is definitely a factor in driving more elephants into Zambia and causing a problem here. If an elephant is shot, others will leave the area for safety. Elephant can communicate over up to 7 miles and they never forget. Until recently, Zimbabwe had an excellent record for wildlife conservation and some of the best game parks in the world. But with land redistribution, some of the best game parks have been settled or invaded by people with no experience of wildlife management at all. Invaded का मतलब क्या है? When an armed force enter a country to occupy it, its उर्दू meaning is हमला करना. Conservation का क्या मतलब है? इस पैराग्राफ के ऊपर वाले पैराग्राफ में देखें. Conservation का मतलब है careful preservation and protection of something, especially natural resources. उर्दू meaning is तहफ़्फ़ुज़ करना. All right. Game is being systematically wiped out by local people shooting and setting snares. It is lawlessness. Snares का मतलब क्या है? A device for catching small animals and birds. Its Urdu meaning is फंदा डालना. It is lawlessness. Zimbabweans living on the Zambian sides of the border are gay about discussing wildlife in Zimbabwe for fear of repercussions. Repercussions का क्या मतलब है? Bad effect, जो बुरा असर होता है. For relatives and business associates still inside the country, however, Andy, a white Zimbabwean working for Zambia Safari Lodge, said everybody knows there is illegal hunting in Zimbabwe on a massive scale. Wildlife is being wiped out. That is why elephants are coming across. In some areas, there are so many snares set that animals caught in them are just being left to rot. We have heard shooting at night. Another safari lodge employee near Victoria Falls said there are certainly more elephants arriving from time to time. We have heard shooting at night from the Zimbabwe side. There is only one explanation: poaching. The head of the Zambian Wildlife Authority, Zava Hapanga Kabita, said he had been assured that Zimbabwean wildlife authorities were implementing appropriate wildlife management and providing good leadership in conservation issues. He blamed the exodus on drought and overpopulation. He said reports on the internet that up to 80% of Zimbabwe's wildlife had been slaughtered were without foundation. However, he acknowledged there might be a problem on Zimbabwe's private game parks where land redistribution meant new owners may not have the skills and wildlife could be at risk.
Experts acknowledge that the influx of elephants into the tiny Mosi-oa-Tunya Park is representing a problem for Zambian authorities. Influx का मतलब क्या है? An arrival of large number of people. आमद. The park is hemmed in by houses and farms, and smallholders have blamed the elephants for damage to fruit trees and property. Elephants come and break down our trees. Simasiku Pomelo, who farms 200 hectares of maize, millets, vegetables and fruits on the edge of the Livingstone, said wild elephants regularly visited his land to eat what they could find. Sometimes they come at night and break down the trees just across from the front door. It is terrifying, you cannot go out, he said. The elephants destroy the maize and dig up vegetables. If you plant 5 acres of maize, the elephants usually eat 4 of them. To put so much work into growing food for the elephants is devastating. I believe that they should be culled. But is culling the answer? National park authorities are considering how to solve the problem without resorting to a cull, which would be unpopular with wildlife experts and tourists. Under present Zambian law, elephants cannot be shot, although the government will reintroduce hunting next year. One possible solution is to open up an elephant corridor to encourage the elephants to migrate 124 miles north to a larger national park at Kafiu in northern Zambia, where elephants are in short supply. Now come to the explanation. At Mosi-oa-Tunya National Park on the Zambian side of the Zambezi River, elephants are arriving daily from across the river. अब जो कह रहे हैं कि ये जो Zambezi साइड है, सही है, जो जिम्बाब्वे से एलिफेंट्स आ रहे हैं ज़ैम्बेज़ी साइड में, उधर एक नेशनल पार्क है ज़ैम्बेज़ी में, मोसी-ओआ-टन्या और ज़ैम्बेज़ी पार्क का नाम है. वहाँ ये एलिफेंट्स आ रहे हैं हर दिन, उस रिवर के क्रॉस आ रहे हैं हर दिन ये एलिफेंट्स. और ये क्या कर रहे हैं, इनका जो इमिग्रेशन है, जो इनकी हिजरत है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सेज दैट द मूवमेंट इज़ मच लार्जर देन अ नॉर्मल सीजन इमिग्रेशन. जो इनकी मूवमेंट है, जो इनका आना है, वो काफ़ी, इनके जो इमिग्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा है. इट इज़ मच लार्जर, जो कि आम हिजरत होती है हर साल, उससे काफ़ी ज़्यादा है ये इमिग्रेशन, काफ़ी ज़्यादा है ये हिजरत. बहुत बड़ी तादाद में एलिफेंट्स आ रहे हैं जो कि इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. दे आर कॉजिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर ज़ैम्बियन अथॉरिटीज़. There are so many elephants trapped in a small area that serious damage is being caused to the environment. थोड़ी जगह में इतने ज़्यादा एलिफेंट्स हो गए हैं कि इनके लिए एक सीरियस डैमेज पेश कर रहे हैं. इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर में ये लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स, सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. About 200 elephants are thought to be living in the small national park close to a city of Livingston, an area more used to a population of about 50. जिस जगह में 50 की तादाद में पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ 200 एलिफेंट्स हो गए हैं. तो आप खुद सोचें कि ये जगह कितनी तंग हो गई होगी और कितने इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होंगे. The elephants are stripping the area of foliage and knocking down trees, and there are conflicts between the wildlife elephants and farmers. Elephants killed 2 local villagers in the park this year. अब जो elephants है, कहते हैं ये सारी वो जो plants है, foliage की leaves हैं, सारी trees है, कट डाउन कर रहे हैं, गिरा रहे हैं और उनको खा रहे हैं. तो इसलिए जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं और फार्मर्स जो हैं, जो कि खेती बाड़ी करते हैं, उन प्लांट्स को, उन ट्रीज़ को उगाते हैं, तो जो एलिफेंट्स हैं उन फार्मर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए हैं, एक जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है. उनमें तनज़ुआत आ गए हैं, सही है, इनमें डिसएग्रीमेंट्स आ गए हैं, वो एक दूसरे में के ऑपोजिट हो गए हैं. और इन एलिफेंट्स ने क्या किया, 2 लोकल विलेजर्स को इसी पार्क में कत्ल भी कर दिया. लॉलेसनेस. नोबल ज़ैम्बियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूके बेस्ड डेविड शेफर्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, जो कि वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनको रिप्रेजेंट करता है, उसकी बात हो रही है कि वो क्या कहता है. He said lawlessness in Zimbabwe is definitely a factor in driving more elephants into Zambia and causing a problem here. जो कि इलीगल काम हो रहा है जिम्बाब्वे में, यही वजह है कि ये एलिफेंट सारे आ रहे हैं इधर ज़ाम्बिया में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. If an elephant is shot, others will leave the area for safety. अब जाहिर बात है कि सारे एलिफेंट्स होंगे, उसके सामने एक एलिफेंट को मार दे, दूसरे एलिफेंट को मार दे, तीसरे एलिफेंट को शूट आउट कर ले, तो सारे एलिफेंट्स डर के मारे उस जगह से जाएंगे अपनी सेफ्टी के लिए, वो एरिया छोड़ देंगे अपनी सेफ्टी के लिए. एलिफेंट्स कैन कम्युनिकेट ओवर अप टू 7 माइल्स. एलिफेंट जो है वे एक दूसरे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. दे कैन कम्युनिकेट अप टू 7 माइल्स. 7 मील की दूरी में भी ये एक दूसरे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ये कभी नहीं भूलते. एंड दे नेवर फॉरगेट.
एक बात को कभी नहीं भूल जाते। Until recently, Zimbabwe had an excellent record for wildlife conservation and some of the best games parks in the world. कुछ ही दिन पहले, अभी की ये बात है कि जो जिम्बाब्वे है उनके पास एक्सीलेंट रिकॉर्ड था। जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके पास काफ़ी अच्छे बेस्ट गेम्स पार्क्स थे जो सारी दुनिया में मशहूर थे। But with land redistribution, some of the best game parks have been settled or invaded by people with no experience of wildlife management at all. But अभी क्या हो रहा है, लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ जो गेम पार्क्स हैं वो ऐसे लोगों के हाथ में चले गए हैं जिनको उनको मैनेज करना नहीं आता, जिनको वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट नहीं आती है, गलत लोगों के हाथ में चला गया है इनके जो गेम पार्क्स थे। Game is being systematically wiped out by local people shooting and setting snares. It is lawlessness. ये लोग क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को उधर से भगाने के लिए, इन एलिफेंट्स को उधर भगाने के लिए इन्होंने स्नेयर्स रखे हुए हैं। स्नेयर्स क्या होता है, जो पंदे होते हैं, वो डिवाइस होता है जिसमें स्मॉल एनिमल्स को या बर्ड्स को या इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को रोप या वायर की वजह से उनके गले में वो रोप वायर डाल दिया जाता है और टाइटन कर दिया जाता है और एक पंदा सा लगा देता है, उनको मार देते हैं। तो ये कहते हैं कि उन्हीं लोगों ने इनके लिए फंदे रखे हुए थे, इनके लिए स्नेयर्स रखे हुए थे ताकि इनको किल कर सके, और ये इलीगल काम था। इट इज़ लॉलेसनेस। Zimbabweans living on the Zambian side of the border are gay about discussing wildlife in Zimbabwe for fear of repercussions for relatives and business associates still inside the country. अब जिम्बाब्वे के लोग क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, वो हुकूमत के डर से इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि जिम्बाब्वे में उनके जॉब्स हैं, उनके कारोबार हैं। अगर उन्होंने आवाज़ उठाई इन वाइल्ड लाइफ के लिए तो उनके साथ भी बुरा होगा, इसलिए वो इस डर से, इस फेयर से चुप करके बैठे हुए हैं और उनको सब कुछ पता भी है, पर वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओके। However, Andy, a white Zimbabwean working for a Zambia safari lodge, said everybody knows this is illegal hunting in Zimbabwe on a massive scale. सबको पता है कि ये एक लॉलेसनेस है, एक इलीगल काम है, इलीगल शिकार है जिम्बाब्वे में, और एक बड़े तादाद में है, ऑन अ मैसिव स्केल, बहुत बड़ी तादाद में है। वाइल्ड लाइफ इज बीइंग वाइप्ड आउट, दैट इज बाय द एलिफेंट्स आर कमिंग अक्रॉस। इन सम एरियाज देयर आर सो मेनी स्नेक्स सेट दैट एनिमल कॉट इन देम आर जस्ट बीइंग लेफ्ट टू रॉट। ये कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल वाइप आउट किया जा रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है, और ये एलिफेंट इसलिए इस ज़ैम्बेसी रिवर के थ्रू आ रहे हैं ज़ाम्बिया की तरफ, और यही वजह है कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और इनके लिए क्या किया हुआ है, स्नेयर्स, हर जगह पंदे डाले हुए हैं कि इनको पकड़ ले और इनको किल कर ले और इनका मीट खाया जा सके और बेचा जा सके। वी हैव हर्ड शूटिंग एट नाइट। Another safari lodge employee near Victoria Falls said there are certainly more elephants arriving from time to time. We have heard shooting at night from the Zimbabwe side. There is only one explanation, that is poaching. अब जो सफारी लॉज का एम्प्लॉय है ये क्या कहते हैं, विक्टोरिया फॉल्स के साथ ये नज़दीक रहता है, ये कहते हैं कि हमें जिम्बाब्वे से शूटिंग की आवाज़ आती है। जब एलिफेंट्स को शूट किया जाता है हमें उधर से आवाज़ें आ रही होती हैं, और एक ज़्यादा से ज़्यादा एलिफेंट्स जल्दी उधर से आ रहे हैं और हमें शूटिंग की आवाज़ आती है। रात को हमें शूटिंग की आवाज़ आती है जिम्बाब्वे की साइड से, और इसकी और कोई भी वजाहत नहीं है। देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन देन पोचिंग। पोचिंग का क्या मतलब, जो शिकार कर रहे हैं ये लोग, तो इसका यही मतलब है कि इनकी शिकार हो रही है, इसलिए ये वहाँ से आ रहे हैं। द हेड ऑफ द ज़ाम्बियन वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी Zava Hepinga Kabita said that he had been assured that Zimbabwe wildlife authorities were implementing appropriate wildlife management and providing good leadership in conservation issues. He blamed the exodus on drought and overpopulation. कहते हैं कि जो ज़ाम्बियन वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी का जो हेड है, बिल्कुल जो उसका अथॉरिटी उसके पास है, जो बिल्कुल हेड है ज़ाम्बियन के वाइल्ड लाइफ का, तो वो कहते हैं कि उसको एश्योर किया हुआ है, उसको मेक श्योर किया हुआ है कि ज़िम्बाब्वेन वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ काफ़ी ख्याल रख रहे हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का, काफ़ी अप्रोप्रिएट तरीके से उनका ख्याल रखा जा रहा है। पर इस तरह तो कुछ भी नहीं है।
उनकी तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जा रहा है, उनकी कंजर्वेशन इश्यूज़ को देखा जा रहा है। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? उनके तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, पर इस तरह तो कुछ भी नहीं है। ही ब्लेम द एक्सोडस ऑन ड्राउट एंड ओवर पॉपुलेशन। वो कभी ना कभी ये भी ब्लेम करता है कि जो हिजरत है, जो एक्सोडस हिजरत है, ये किसकी वजह से है? ड्राउट की वजह से है और ओवर पॉपुलेशन की वजह से है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और ड्राउट यानी खुश्कसाली हो गई है, कहत पड़ गया है, इसीलिए ये हिजरत हो रही है। ही सेड reports on the internet that up to 80% of Zimbabwe's wildlife elephants had been slaughtered were without foundation. However, he acknowledged there might be a problem of Zimbabwe's private game parks where land distribution meant new owners may not have the skills and wildlife could be at risk. इसमें वही बात हो रही है कि जो जिम्बाब्वे के प्राइवेट गेम्स से जो कि गलत ओनर्स के पास चले गए हैं, उनके पास वो स्किल्स नहीं हैं, उनको उस तरह अरेंज करना सब कुछ, उनकी वाइल्ड लाइफ की देखभाल करना सही तरीके से नहीं आता, इसलिए वो उनको उधर से निकाल रहे हैं। और जो एलिफेंट्स हैं उनको स्लॉटर कर रहे थे ये लोग। 80% जो इंटरनेट पे इनकी जो पॉपुलेशन आई है रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेट पे अप टू 80% ऑफ जिम्बाब्वेज वाइल्ड एलिफेंट्स हैड बीन स्लॉटर्ड। 80% के जो जिम्बाब्वे के वाइल्ड एलिफेंट्स थे उनको ज़िबा कर दिया था पिछले दिनों। Experts acknowledge that the influx of elephants into the tiny Mosi-oa-Tunya Park is representing a problem for Zambian authorities. The park is hemmed in by houses and farms, and smallholders have blamed the elephants for damage to fruits, tree and property. एक्सपर्ट्स जो हैं उन वहाँ के ज़ाम्बिया के, वो कह रहे हैं कि मोसी-ओआ-टन्या पार्क में जब से एलिफेंट्स आए हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं इनके लिए। पार्क जो है उसमें जो हाउसेस हैं या जो फार्म्स हैं या जो छोटे छोटे घर हैं उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं ये एलिफेंट्स, क्योंकि अगर इधर आए हैं उनको खाना वगैरह चाहिए और जो फ्रूट के ट्रीज़ हैं, जो कि वेजिटेबल्स हैं, ये वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सब कुछ गिरा रहे हैं, उखा रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। एलिफेंट्स कम एंड ब्रेक डाउन आवर ट्रीज़। Simasiku Pamalo, who farms 200 hectares of maize, millet, vegetables and fruits on the edge of the Livingstone, said wildlife elements regularly visited his land to eat what they could find. अब जो Simasiku Pamalo है ये एक फार्मर है, इसकी जो फार्मिंग एरिया है वो कितनी है? 200 हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या होता है? आपको पता है कि एकड़ क्या होता है? तो ये यहाँ 200 हेक्टेयर्स की जब बात हुई है तो आप इस तरह एस्टिमेशन लगाए कि एक हेक्टेयर कितना होता है? 2.47 एकर्स। एकर्स को तो आपको पता है ना। तो जो 200 हेक्टेयर्स हैं इसमें एक हेक्टेयर निकाल दो, वो कितने ज़मीन के इक्वल होता है? 2.47 एकर्स के। तो आप खुद सोचिए कि 200 हेक्टेयर्स कितनी बड़ी जगह होगी। तो 200 हेक्टेयर्स की जगह में जब वो फार्मिंग करता है और वहाँ उसने क्या क्या उगाया हुआ है? मेज़ मतलब मकई, मिलेट यानी बाजरा, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ और फ्रूट्स यानी फल, उसने सब कुछ यहाँ उगाए हुए हैं। तो वो कहता है, उसका कहना है कि वाइल्ड एलिफेंट जो हैं वो आते हैं, रेगुलरली विजिट करते हैं, हर दिन आते हैं और उनको जो लैंड में जो भी दिखा उसको खा जाते हैं। They visited his land to eat what they could find. उनको जो भी मिलता है वो खाने लग जाते हैं। Sometimes they come at night and break down the trees just across from the front door. It is terrifying. You cannot go out, he said. वो कहते हैं कि कभी न कभी तो इस तरह होता है कि ये रात को आते हैं और सारे ट्रीज़ गिरा देते हैं। अक्सर एक ट्री तो हमारे घर के सामने है उसको भी गिरा देते हैं, घरों के सामने के जो ट्रीज़ होते हैं उसको गिरा देते हैं और ये मंजर बड़ा स्केरी होता है, बड़ा टेरिफाइंग होता है, क्योंकि आप घर से फिर बाहर नहीं जा पाते, आपके घर का दरवाज़ा ब्लॉक हो जाता है। The elephants destroy the maize and dig up the vegetables. If you plant 5 acres of maize, the elephants usually eat 4 of them. To put so much work into growing food for the elephant is devastating. I believe they should be culled. ये जो फार्मर है इसका कहना है कि इन एलिफेंट्स को किल करना चाहिए। दे शुड बी कर्ल्ड। कर्ल्ड का मतलब है किल करना, क्योंकि ये आते हैं और इसने जो मेज़, जो बाजरा, मिलेट वगैरह उगाया होता है उसको ख़राब करते हैं। दे डिस्ट्रॉय इट। एंड अगर आपने 5 एकर्स ऑफ मेज़ यानी मकई उगाई होती है तो इसमें से ये 4 एकर्स तो खा जाते हैं, तो इसमें ये फार्मर्स के लिए तो कुछ नहीं बचता ना। और ये कहते हैं कि ये एक बहुत डिवेस्टेटिंग सूरत हाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन मंजर पेश करता है जो वो 4 एकड़ उन्होंने सब कुछ ख़राब कर देते हैं और वो खा लेते हैं। बट इज़ कलिंग द आंसर? क्या कलिंग आंसर है इस चीज़ का? क्या इन एलिफेंट्स को किल कर देना चाहिए? अब इसका आंसर हमें नीचे पैराग्राफ में मिलेगा।
National park authorities are considering how to solve the problems without resorting to a cull. कहते हैं कि जो नेशनल पार्क है, जहाँ सबसे बहुत बड़ी जो आमद है एलिफेंट्स की नेशनल पार्क में, वो वाले जो अथॉरिटीज़ के लोग हैं वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमें कुछ इस तरह रास्ता निकालना चाहिए कि हम इनको किल भी ना करें, जैसे जिम्बाब्वे वाले लोग इनको कर रहे थे। ज़ाम्बिया वाले लोग अच्छे हैं, वो इनको किल नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो तदबीर कर रहे हैं कि हम क्या इस तरह करें कि वो किल भी ना हो और हमारा नुकसान भी ना हो। Which would be unpopular with wildlife experts and tourists. हम इनको किल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत नामुनासिब बात होगी वाइल्ड लाइफ के लिए। अंडर प्रेजेंट ज़ाम्बियन लॉ एलिफेंट्स कैन नॉट बी शूट। ज़ाम्बियन के लॉ के मुताबिक कि एलिफेंट्स को आप शूट नहीं कर सकते। जिम्बाब्वे में भी ये लॉ था, बट वहाँ हुक्म अदूली हो रही थी, लॉ की लॉलेसनेस था, वहाँ इलीगल तरीके से हो रहा था। और यहाँ पे ये कहते हैं कि हम इलीगल काम नहीं करेंगे और हम एलिफेंट्स को शूट नहीं करेंगे। ऑल्दो द गवर्नमेंट विल री इंट्रोड्यूस हंटिंग नेक्स्ट ईयर। One possible solution is to open up an elephant corridor to encourage the animals to migrate 124 miles north to the larger national park at Kefiu in northern Zambia, where elephants are in short supply. अब ये लोग सोच रहे हैं कि एलिफेंट्स को हम इस जगह भेजेंगे, उस जगह जहाँ के एलिफेंट्स की तादाद बहुत थोड़ी हो, कि बस ये लोग ये एलिफेंट्स चले जाएं तो उनकी तादाद वहाँ सही हो जाएगी, जो कि वहाँ उसकी तादाद बहुत कम हो। और वो कौन सी जगह है, ये यहाँ एक जगह की बात कर रहे हैं कि जो कि नॉर्दर्न एरिया है और वहाँ एक लार्ज नेशनल पार्क है, लार्जर नेशनल पार्क एट कैफ्यू इन नॉर्थन ज़ाम्बिया। ज़ाम्बिया का जो नॉर्थन एरिया है, जो बालाई इलाका है, उधर जाने की बात कर रहे हैं कि जो कि 124 माइल्स ऊपर है नॉर्थ में। तो ये कहते हैं कि एलिफेंट्स को उधर अगर भिजवा दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ एलिफेंट्स की तादाद ऑलरेडी बहुत कम है। तो यहाँ जो ये लोग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो इसकी नौबत पेश नहीं आएगी। आई होप आपको इस यूनिट की इस टेक्स्ट की समझ आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाले टेक्स्ट पढ़ेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।